So hello students, so welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ of this topic, indefinite integration. Okay, in previous video lecture we completed first 20 MCQs of indefinite integration. So let's start the next MCQ, that is MCQ number 21st. Okay, this is about indefinite integration. So look at the MCQ number 21st and 22nd. So first 21 solve करेंगे. So what he has given, I is equal to integral 1 upon e raised to x plus e raised to minus x whole square. So हमें इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये कौन से भी टाइप का एग्जाम्पल नहीं है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देन वी कैन इंटीग्रेट दिस. So first of all, this e raised to minus x is 1 upon e raised to x, e raised to x plus 1 upon e raised to x whole square dx. सिर्फ मैंने क्या किया, e to the power minus x को प्लस किया, पॉजिटिव पावर किया 1 upon e to the power x. सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, e raised to 2x, e raised to x into e raised to x is e raised to 2x plus 1. After cross multiplication, this denominator goes to direct numerator, e to the power 2x dx. ये होल स्क्वायर, e raised to x का स्क्वायर e raised to 2x डायरेक्ट गोज टू न्यूमरेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर का वो डिनोमिनेटर था. इस e raised to 2x को हम स्प्लिट करेंगे, e raised to x into e raised to x dx डिवाइडेड बाय e raised to 2x plus 1 होल स्क्वायर. नाउ इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे t. सो पुट करो e टू द पावर 2x plus 1 इज इक्वल टू t. सब्सटीट्यूशन में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, e टू द पावर 2x dx, 2x का डेव टू 2, 1 into 2 इज इक्वल टू dt. e raised to 2x, न्यूमरेटर e raised to 2x एज इट इज. सब्सटीट्यूट किया e raised to 2x plus 1. So e raised to 2x dx is equal to half dt. This is half dt. So integration 1 upon t square half dt. One upon t square is t to the power minus 2 into half dt. t to the power minus 2 का इंटीग्रेशन x raised to n का फॉर्मूला t raised to minus 1 डिवाइडेड बाय minus 1 into 1 by 2 plus c minus 1 upon 2t plus c. t raised to minus 1 is upon t, minus 1 by 2 into t is this e raised to 2x plus 1 plus c. ये उसका आंसर. दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ 21. ऑप्शन इज व्हाट, सी. सी ऑप्शन है. वेरी सिंपल. ये पहले नेगेटिव पावर पॉजिटिव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये सब्सटीट्यूट किया. इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, एज इट इज रखो e raised to 2x, बिकॉज उसका डेरिवेटिव वही आएगा. into 2 राइट्स को ट्रांसफर किया, 1/2 बनेगा. सो दिस इज अ 21. नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 22. 22 में क्या है, e to the power sin x into cos x है, उसके सामने sin 2x cos 2x है. ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है. sin x इंटू cos x है तो उसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो दैट बिकम sin 2x, और sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x है उसके सामने. सो एग्जांपल नंबर 22, e टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू cos 2x dx. सो दिस इज एग्जांपल. सिंपल लॉजिक, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. 2 sin x into cos x is sin 2x, sin 2x by 2 cos 2x dx. so ये सब्सटीट्यूट करेंगे t. sin 2x by 2 is equal to 2 t. sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 divided by 2 as it is, dx is equal to dt. so this 2 and this 2 cancel. So this is the part cos 2x dx we can replace by dt. So e to the power t dt. So what is the answer? E raised to t plus c. Integration of e raised to t is e raised to t.
सो t इज व्हाट sin 2x बाई 2 में सेम वही आंसर आएगा t is sin 2x बाई 2 sin 2x बाई 2 इज सेम e raised to sin x into cos x plus c. So this is the MCQ number 22. Is it clear? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ये आएगा. 22 का ऑप्शन क्या है? ये है. Now 23rd. So बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है 22, बट जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट पार्ट इज सब्स्टिट्यूट एज इज टी. हमें क्या पुट करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है. इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सो एग्जाम्पल कौन से मेथड से सॉल्व करना ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल इन विच वी हैव टू सब्स्टिट्यूट और बाय पार्ट्स और बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किस मेथड से सॉल्व करना है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. नाउ 23rd एंड 24th MCQ number 23rd. So in 23rd, different example, completely different. Integration of f of x dx is equal to f of x. F of x का integration f of x, it means derivative of f of x is also f of x. Derivative of f of x is also f of x. So same, what we have to find? Integration of f of x whole square. ये हमें फाइंड करना है. कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड एमसीक्यू है. टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जांपल आपको कहीं भी दिखेंगे नहीं. ये जजमेंट के एग्जांपल है. देखो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. f ऑफ x इंटू f ऑफ x dx होल स्क्वायर है, उसको स्प्लिट किया. ये f ऑफ x, दिस f ऑफ x इज व्हाट? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मींस वी कैन राइट d by dx ऑफ f ऑफ x. ये dx एज इट इज. इस f ऑफ x को मैंने क्या पुट किया? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बाय डेफिनेशन. सो ये रेस टू n है f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव उसके सामने है. सो इसका रेस टू n मीन्स 1 है ये. सो f ऑफ x होल स्क्वायर बाय 2 ये उसका आंसर. इट्स वेरी सिंपल जजमेंट. f of x होल स्क्वायर को मैंने f of x into f of x किया and this f of x is nothing but derivative of f of x. f of x into derivative of f of x. f of x into f dash of x. That will be what? f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Here n is what? 1. So we apply here the corollary, that is the result of substitution method. Okay. So after completion of 23rd, now 24th. 24th example थोड़ा different है. Square root of 1 minus x divided by 1 plus x. So this is integration with respect to x. So ये तो very renowned substitution. We can substitute here 1 x is equal to cos theta. Cos 2 theta भी substitute कर सकते हैं, cos theta भी substitute करो. So जज आंसर तो वही आएगा. So 1 minus x upon 1 plus x, this is a regular substitution from differentiation से आपसे देख रहे हैं कि इसको क्या पुट करना है. सो देखो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या? साइन थीटा डी थीटा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 dx इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा. 2 कैंसल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल. साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2. दिस माइनस साइन टेकिंग आउटसाइड. साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा. इसका सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया. दिस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसल. 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स व्हाट? 1 माइनस कॉस थीटा 1 minus cos theta. Sin square cos square is not integrable, so we have to convert into sub multiple angle formula, that is 2 sin square theta by 2 means what? 1 minus cos theta. So 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस c. So theta is what? Theta is cos inverse of x. Cos inverse x plus sin theta. Theta means what? Cos inverse of x.
यहाँ पे साइन इनवर्स आया है, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट भी करेंगे। ये कॉस इनवर्स को मैं क्या करता हूँ, ये माइनस साइन भारी रहता हूँ, कॉस इनवर्स मीन्स व्हाट, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, बिकॉज वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमारा आंसर आया है, बट ये मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में। ऑप्शन को अगर मैच करना है तो और नॉलेज चाहिए और उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, बिकॉज हमारा आंसर माइनस कॉस इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कॉस इनवर्स x आया। सो इसको क्या करना है, हमें आंसर में कन्वर्ट करना है। सो दैट यू मस्ट नो द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द आइडेंटिटी, एक्चुअली नॉट आइडेंटिटी, इज अ फार्मूला। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इट मीन्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर को राइट करेंगे प्लस सी। सो यहाँ पर साइन अंदर साइन इनवर्स लाना है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कॉस इनवर्स x इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस टर्म एलिमिनेट, माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इधर एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज वन मोर कांस्टेंट, सो वी कैन राइट अगेन सी ओनली। एक इंटीग्रल में एक ही कांस्टेंट होना जरूरी है, जो भी हमारा आंसर है उसमें एक ही कांस्टेंट होना चाहिए। बट यहाँ पर एक सी आया, यहाँ पर एक माइनस π/2 आया। सी माइनस π/2 इज अगेन सी, उसको कैपिटल सी लिखो, C1 लिखो, इट इज टू बी सेम, राइट। सो साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin inverse x plus √1 minus x square plus c. So option of 24 is what? D. Okay, so this is the solution of 24. 4 एग्जाम्पल हुए हैं। I hope you understand the clear concept regarding these 4 examples, 4 MCQs. So let's start the 25 and 26. हर एक एग्जाम्पल डिफरेंट लेवल का है, हर एक एग्जाम्पल में डिफरेंट कंसेप्ट है। सो इम्पोर्टेंट नॉट सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन से बहुत सारी वैराइटीज है। देखो आप 25 एक डिफरेंट एग्जांपल है। 25, 26 A25 sec raised to 4x into cosec square x dx। सो उसका आंसर दिया है 25 में। आंसर क्या है देखो, रीड करो, a tan क्यूब x प्लस b tan x प्लस c cot x। सो सब tan की टर्म है, tan cot भी एक tan की टर्म है, बिकॉज cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो हमें tan x आंसर में लाना है। इट मीन्स व्हाट, जजमेंट लॉजिक इज व्हाट, हमें tan x ही पुट करना है t। सो इज इट क्लियर। अगर tan x पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होना जरूरी है, sec स्क्वायर होना जरूरी है। सो tan x पुट करना है, ये जजमेंट है इस एग्जांपल का। सो वो आपको समझ में आना चाहिए। sec raised to 4x इंटू cosec स्क्वायर x को मैं 1/sin स्क्वायर x करता हूँ, ये sin स्क्वायर x dx। डिवाइड करो दोनों साइड cos स्क्वायर x से क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे sec raised to 6x बनेगा, sec raised to 6x। सो इट्स sec raised to 6x को हम स्प्लिट करेंगे sec raised to 4x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। दिस टर्म एज इट इज। ये sec raised to 6x कैसे बन गया, sec raised to 4x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। cos स्क्वायर x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर sec raised to 4 sec raised to 6x, फिर से उसे स्प्लिट किया। गॉट इट। सो यहीं पर वो एक स्टेप हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते थे। इस sec raised to 4 को sec स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे। sec स्क्वायर मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये sec स्क्वायर x एज इट इज डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। और एग्जाम्पल विद इन 1 मिनट होना चाहिए टारगेट रखो। हर एग्जाम्पल विद इन 1 मिनट होना पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल विद इन 10 सेकंड भी होते हैं, 50 सेकंड भी होते हैं, 30 सेकंड भी होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा टाइम लगता है। सो हमें वो टाइम मैनेजमेंट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है।
सो tan x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, tan x का डेरिवेटिव sec square x, so this becomes I is equal to 1 plus t square whole square divided by t square dt. tan x t 1 plus t square whole square 1 plus 2t square plus t raised to 4 divided by tan t square divided by t square divided by t square, सेपरेट डिवाइड भी किया, ये dt 1 by t square is t raised to minus 2 plus 2 plus t square dt, t raised to minus t का इंटीग्रेशन t raised to minus 1 t raised to minus 1 divided by minus 1 plus 2t plus t cube by 3 plus c minus 1 by t minus 1 by tan x minus 1 by tan x plus 2 tan x plus tan cube x by 3 प्लस ये उसका आंसर है, करेक्ट है। सिर्फ आपको चेक करना है a tan cube x, a की वैल्यू 1/3, b tan x, b की वैल्यू 2, c cot x 1/10 is cot, c की वैल्यू -1, ये उसका आंसर 1/3 2 -1। देखो चेक करो ऑप्शन क्या है, बी है। ओके, दिस इज द ऑप्शन बी, MCQ नंबर 25, राइट। सो अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करो और अंडरस्टैंड होना जरूरी है। सिर्फ उसको देखो मत, उसको कॉपी करो, उसको कॉपी करो ये सब चीज़, और ये जजमेंट आपको आना चाहिए। नाउ next is what 26. So what to do for 26? Write it the example immediately, उसको पेपर पे राइट करो और पहले उसके बारे में सोचो क्या करना है। ये सब MCQ आपको, ऐसे MCQ आपको टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल है और वेरी चैलेंजिंग और वेरी वैराइटीज पैटर्न एग्जाम्पल। नाउ 26 देखो, 26 इंटीग्रेशन 1/1 plus x to the power 3 dt। सो अभी देखो इसको कुछ भी लॉजिक नहीं, क्या सॉल्व करना, बाय सब्स्टिट्यूशन है, बाय पार्ट्स है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, नहीं। यहाँ पर ये जो बाय सब्स्टिट्यूशन के 10 टाइप मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए, द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, वो 10 टाइप में कहीं पर भी एग्जाम्पल ही बैठेंगे नहीं। ओके, सो इसको क्या करना है, पुट करो x to the power 1/3 इज इक्वल टू t, इसको t पुट करेंगे। सो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू t क्यूब, dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। सो इस dx की जगह पर 3t स्क्वायर dt रखेंगे, 3t स्क्वायर dt, और ये 1 प्लस टी, राइट। सो ये सॉल्व करते हैं। एक बार आपको ऑप्शन को देखना जरूरी है, और ठीक है, इट्स गुड। ये 3 आउटसाइड है, टी स्क्वायर -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में t प्लस 1 है, ये एडजस्टमेंट -1 किया +1 किया, ये इमीडिएट होना चाहिए। t -1 t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी dt। ये फैक्टर कैंसल, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 -1 का t प्लस log ऑफ 1 प्लस टी, ये उसका आंसर है। अब सिर्फ क्या करना है, t स्क्वायर मीन्स व्हाट, x to the power 2/3, x to the power 2/3/2 minus t is what, x raised to 1/3 plus log of 1 plus x to the power 1/3 plus c, ये उसका आंसर। सो देखो चेक करो, सी ऑप्शन है शायद, ये प्लस होना जरूरी है। अगर प्लस है तो फिर ऑप्शन ए आएगा, नहीं बी आएगा, बी ऑप्शन है, चेक करो। ये माइनस, ये प्लस ही है, +1/1 प्लस टी, -1 +1 +1/1,
1 का इंटीग्रेशन राइट प्लस, ऑप्शन इज व्हाट बी. ओके, सो दिस इज अ 25 एंड 26. नाउ 27 एंड 28, ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत मीन्स एब्सोल्युटली इतना ही करो, इंटीग्रेशन पक्का हो जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 26. लेट्स सी द 27 एंड 28. सो व्हाट अबाउट 27? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंटीग्रल. क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रैंड I is equal to integration x cos x divided by root x sin x plus cos x, x sin x plus cos x. So 27 में अगर ये पार्ट हमने t पुट किया तो डेफिनेटली डेरिवेटिव आ सकता है. सो सब्सटीट्यूट करो, x sin x plus cos x इज इक्वल टू टी. u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करो, x cos x प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ये कैंसल, cos x dx की जगह पर dt रखो, 1 अपॉन रूट टी डी टी. 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, 2 रूट x साइन x प्लस cos x. ये देखो ये एग्जाम्पल 1 मिनट के अंदर सॉल्व हुआ. बट इम्पॉर्टेंट ये डिफ्रेंशिएशन इसको पुट करना है टी, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट. सो ये कुछ लर्न करके जाना नहीं, ये सब डेवलप होता है आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लेवल, कॉन्फिडेंस के लेवल बढ़ जाएंगे. ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 27 लुक एट एग्जांपल नंबर 28. अब 28 में क्या है, ये एग्जांपल JEE को आया है, tan ऑफ साइन इनवर्स x है. छोटा एग्जाम्पल, दिखने में बहुत सिंपल है, tan ऑफ साइन इनवर्स x. tan ऑफ साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, किसी भी टाइप में ये सूट नहीं होगा. सो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना चाहिए, tan इनवर्स लाना चाहिए. सो साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो x अपॉन tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये जो प्रॉपर्टी है, ये सब्स्टिट्यूशन एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट करो, डेफिनेटली ये आएगा. सो एलिमिनेट ही एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो इतना बच गया सिर्फ. इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो बहुत ही सिंपल, इसको t पुट करो, माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ डी टी. एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस हाफ डी टी रखो और ये 1 बाय रूट टी. 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी. ये 2 कैंसल, माइनस इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये उसका आंसर. सो सबसे इंपॉर्टेंट ये तो फंडामेंटल कंसेप्ट है. अगर बाहर टैन है तो अंदर टैन इनवर्स लाएंगे तो एग्जाम्पल इजी बन जाएगा. लेकिन यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट मत करो, इससे आंसर नहीं बनेगा. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ MCQ नंबर 28. ये सबसे इंपॉर्टेंट. इसके बाद इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है. इंटीग्रेशन में u बाय v का रूल नहीं है, u इंटू v का, बट दैट इज अ बाय पार्ट्स मेथड. जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में करते वैसे मत सॉल्व करो. इज इट क्लियर? सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 28, नाउ 29 एंड 30. 29 and 30. सो 29 भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट है. सो देखो 29 क्या है. MCQ नंबर 29, स्क्वायर रूट ऑफ cos cube x divided by sin raised to 11x.
The integral is absolutely depends on the process of integral is absolutely depends on the MCQ. The जो या ऑप्शंस है उस पर डिपेंड करता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है. सो यहाँ पर देखो 29 में भी राइट साइड में ऑप्शन आंसर दिया है, दोनों भी tan है. सो ऑब्वियसली हमें tan x ही पुट करना है. अगर tan x पुट करना है तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x वहाँ होना जरूरी है. सो sin रेस टू 11 से cos रेस टू 11 से डिवाइड करेंगे. sin रेस टू 11x अपॉन cos रेस टू 11x इज tan रेस टू 11x. cos क्यूब अपॉन cos रेस टू 11, तो cos क्यूब 3 कट हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, दैट इज sec रेस टू 8x. sec रेस टू 8x का डेरिवेटिव हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट इज sec रेस टू 4x. sec रेस टू 4x को स्प्लिट करेंगे sec स्क्वायर x और ये tan रेस टू 11 बाई 2x, tan रेस टू 11 बाई 2x dx. स्क्वायर रूट ऑफ tan रेस टू 11, स्क्वायर रूट ऑफ tan रेस टू 11x इज नथिंग बट tan रेस टू 11 बाई 2. स्क्वायर रूट में रेस टू हाफ होता है, 11 बाई 2 बन जाएगा. इस sec स्क्वायर x को मैं इमीडिएटली 1 प्लस tan स्क्वायर कर दूँ. नाउ इट इज वेरी इजी टू पुट हियर t tan x इज इक्वल टू t. उसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t रेस टू 11 बाय 2 dt. t रेस टू माइनस 11 बाय 2 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी रेस टू माइनस 11 बाय 2 dt. बाकी ये कैलकुलेशन फास्ट करना, सेपरेट डिवाइड, एक टर्म ऊपर जाएगी, पॉजिटिव पावर नेगेटिव बन जाएंगे. सो इसको एक बार ऐसे रखेंगे tan रेस टू माइनस 11 बाई 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 11, 4 माइनस 11 इज व्हाट 7 माइनस 7 बाई 2 dt. व्हाट इट, इसको प्लस 1 करेंगे t रेस टू माइनस 9 बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस 9 बाई 2 प्लस t रेस टू माइनस 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 बाई 2. ये 2 बाई 5 हो जाएगा, 2 माइनस 2 बाई 9 tan x रेस टू माइनस 9 बाई 2 माइनस 2 बाई 5 tan x रेस टू माइनस 5 बाई 2 tan x रेस टू माइनस 5 बाई 2 प्लस ये आंसर. So as taking minus 2 common 1 by 9 1 by 5 1 by 9 1 by 5 B option. ये 1 by 9 and 1 by 5 because minus 2 common लिया है. So ये उसका आंसर है. So what is capital A 1 by 9, capital B is what 1 by 5. सबसे important हमें tan x पुट करना है t because target is defined here. target उन्होंने डिफाइन किया कि उसका आंसर यही आना चाहिए. वैसे इंटीग्रल तो बहुत सारे आ सकते हैं. सो बहुत लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो चाहिए वही लाना है. मीन्स tan x ही पुट करना है बिकॉज ऑप्शन आंसर में tan x दिया है. ओके, सो दैट्स वाई sin रेस टू 11x को हम tan रेस टू 11x कैसे बनाएंगे, अगर cos रेस टू 11x थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तभी बन जाएंगे ये. दिस इज 29. नाउ 30. जैसे जैसे वर्कशीट पास हो जाएंगे वैसे आपको ये क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप को आपको मिलेंगे. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तभी इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चैनल सब्सक्राइब करो. देन एंड देन ओनली यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियोस एंड एनी अपडेट रिगार्डिंग द MST CET. ओके, सो देखो 30 नंबर MCQ नंबर 30. देखो बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर dx. कोई भी मेथड का एग्जांपल ले, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. सब्स्टिट्यूशन का है तो ऑब्वियसली मेथड तो वही है, बट इमीडिएटली ऐसा कुछ स्पेशल टाइप नहीं है. स्पेशल टाइप में कौन से भी टाइप में एग्जाम्पल बैठेगा नहीं. देखो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई 3, ये एक्चुअली x टू द पावर
2/3 है, क्यूब रूट है 2/3, ऊपर जाने के बाद x टू द पावर -2/3 ये dx, ये x टू द पावर 2/3 है, ऊपर जाने के बाद x टू द पावर -2/3 बन जाएगा। टोटल टर्म हम t पुट करेंगे, 1 प्लस x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t, 1/3 x टू द पावर -2/3 is equal to dt by dx, x to the power -2/3 dx is equal to 3 dt. So this is a 3 dt, this is root t, 3 root t dt. root t का इंटीग्रेशन t raised to 3/2 upon 3/2 means into 2/3 upon 3/2 means multiplied by 2/3, this 3 and this 3 cancel, 2, 30 में 2 है और आंसर C है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 रेस टू 2/3 प्लस C raised to 3/2, 2/3 नहीं, so this is option number C। ओके, ये 30 है। 29, 30 इसके बाद सभी MCQ बहुत ही डिफरेंट है, बहुत चैलेंजिंग है, ट्राई करो। अगर आपको ये वर्कशीट आपको चाहिए, ये जो मैंने 250 MCQs की वर्कशीट आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने इस PDF की लिंक दी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते, सॉल्व कर सकते। ओके, सो विल सी 31, 32 immediately after some time. Now let's see the MCQ number 31, 32. अब 31, 32 देखेंगे। What is 31? देखो complete different, cube root of x into 7th root of 1 plus cube root of x raised to 4 dx, cube root of x raised to 4 dx। सो वही टाइप के एग्जाम्पल है, इस टर्म को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 प्लस एक्स रेज टू 4/3 रेज टू 1/7 into x raised to 1/3 dx. Given example and this is same. क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू 4/3 हो जाएगा एंड उसको 7th रूट है तो रेज टू 1/7, क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू 1/3, एक्स रेज टू 1/3 dx। अब इस टर्म को हम डायरेक्टली t पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू 2, 4/3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 minus 1, 1/3 is equal to dt by dx, x raised to 1/3 dx is equal to 3/4 dt। इस जगह पर 3/4 dt रखेंगे, 3/4 dt, 3/4 आउटसाइड, दिस इज अ t raised to 1/7, t raised to 1/7 का इंटीग्रेशन t raised to 1/7 plus 1 8/7 upon 8/7 means 7/8। So what is answer? 21 divided by 32, 21 divided by 32 in bracket t is this। So उसको वही ऑप्शन में लाना है। अगर 1 प्लस इसको t पुट किया है ना, so 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 4 रेज टू 8/7 प्लस c। सो देखो ये ऑप्शन है, ये आंसर है, ऑप्शन चेक करना है बस। व्हाट इज वेयर इज दैट 31 21/32 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 4 रेज टू 8/7 प्लस c, ऑप्शन ए 31 का ऑप्शन क्या है, ये है। सो ये अगर इसके 4-5 एग्जाम्पल अगर आपने सॉल्व किया तो वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको आएगा कि व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट, हमें क्या पुट करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आगे। और देखो 32 क्या है, 32 I is equal to x square divided by square root of 1 minus x dx।
सो सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं ऐसे पुट करता हूँ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करता हूँ, dx इज इक्वल टू माइनस 2t dt। डिफ्रेंशिएट किया, अब ये फास्ट आना चाहिए, 1 का 0 dx का x का 1 2t dt बाई dx लेफ्ट में माइनस राइट साइड में dx इज इक्वल टू माइनस 2t dt। यहाँ पर 2-4 स्टेप्स कम हो सकते हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, रूट टी स्क्वायर मीन्स टी, dx मीन्स माइनस 2t dt, ये t एंड t कैंसिल, माइनस 2 आउटसाइड, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेस टू 4 dt। इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, t माइनस 2t क्यूब बाई 3 प्लस t रेस टू 5 बाई 5 प्लस c। सो सिर्फ आपको t की जगह पर क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम उसने निकाला है, 15 इज एलसीएम हेयर, ये 15 बाहर लेता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस 15 से 15t बन जाएगा, 5 2 जा 10t क्यूब प्लस 3t रेस टू 5 प्लस c। यहाँ से t कॉमन ले लो, t कॉमन आंसर में कन्वर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। t कॉमन ब्रैकेट में क्या, 15 माइनस 10t स्क्वायर प्लस 3t रेस टू 4। ओके, प्लस c, so minus 2 by 15, t is what, square root of 1 minus x, 15 t square means 1 minus x plus 3 1 minus x whole square। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करो, यहाँ तक तो मैच हो रहा है, माइनस 2 बाई 15। सो ये ऑप्शन होना जरूरी, यही ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन। देखो इसके आगे आप सॉल्व करो, इसको एक्सपांड करो, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इसको सॉल्व करो, ये तो मैच हो रहा है। सो 32 का आंसर क्या है, ये है। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्या, ओनली नॉट इंटीग्रेशन, सो वी हैव टू मैच द ऑप्शन, हमें ऑप्शन को मैच करना है हमारा आंसर। ओके, सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में होना जरूरी नहीं है, उसको और सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 32 लेट्स सी द 34 एंड 35। 32 हो गया, 33 एंड 34, 33 एंड 34। देखो 33 क्या है, I इज इक्वल टू ए रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ ए रेस टू x माइनस 1 dx। 4th रूट ए। सो यहां पर इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, e रेस टू 2x को e रेस टू x इंटू e रेस टू x करेंगे, e रेस टू x माइनस 1 इज इक्वल टू t, e रेस टू x dx इज इक्वल टू dt, इसकी जगह पर dt, e रेस टू x इज व्हाट, t प्लस 1, t रेस टू 1 बाय 4। बहुत सिंपल, ये t पुट किया, t रेस टू 1 बाय 4, सो t इंटू t रेस टू माइनस 1 बाय 4 माइनस प्लस t रेस टू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 dt, 4 माइनस 1 3
t raised to 3 by 4, t raised to minus 1 by 4, dt. t raised to 3 by 4 plus 1, 7 by 4, 7 by 4, 4 by 7, t raised to minus 1 by 4, minus 1 by 4 plus 1, 4 minus 1, 3, 3 by 4 प्लस 4 by 3, ये उसका आंसर। उसने क्या कि इसमें से कॉमन लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, t रेस टू 3 by 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, 3 by 4, t रेस टू 3 by 4 प्लस 1, हाँ तो यहाँ से देखो 4 by 7 t इंटू t रेस टू 3 by 4, 4 plus 1, 4 plus 3 7 प्लस 4 by 3 t रेस टू 3 by 4, ये टर्म कॉमन ले लो, t रेस टू 3 by 4 इन ब्रैकेट, 4 भी कॉमन ले लो, 1 by 7 t प्लस 1 by 3, 1 by 7, 1 by 3, 3 plus 7 10, 4 by 21 t raised to 3 by 4, 10 t, 3t, 3t plus 7, 4 by 21 t raised to 3 by 4, 3t, t means what? This is t, e to the power x minus 1 minus 3 plus 7, 4 by 21 t raised to 3 by 4, e raised to x minus 1 raised to 3 by 4, 3 minus 7 minus 3 4, 3 e raised to x plus 4। अब ये तो आंसर आना ही चाहिए, आ गया आंसर, ये ऑप्शन। उसको जैसे सॉल्व करेंगे, t क्या है, e रेस टू x माइनस 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 e रेस टू x माइनस 3 बन जाएगा, माइनस 3 प्लस 7 इज प्लस 4। सो आफ्टर कंप्लीशन सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये इंटीग्रेशन से ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू फोकस ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पे फोकस करो। ऑप्शन में क्या है, 4 by 21, 4 by 21, 4 by 21, 1 by 21, तो ये तो आना ही है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए। सो दिस इज द 33। नाउ 34, लेट्स सी द एमसीक्यू नंबर 34। 34 is completely textbook related question. Read it 34, try to solve it. MCQ number 34, it's a linear upon quadratic equation, x divided by x square plus 4x plus 5 dx. So put numerator is equal to a into denominator plus b. So this is clear cut method, that is linear equation px plus q upon ax square plus bx plus c. That method is what? Numerator linear equation is equal to a into derivative of quadratic equation plus b. Direct derivative 2x plus 4, 2ax plus 4a plus b, x plus 0, 2a is equal to 1, obviously a is equal to 1 by 2, 4a plus b is equal to 0. Left side a constant term, now we can taking 0 as a constant term. 4 into 1 by 2, 2 plus b is equal to 0, b is equal to minus 2, a is equal to 1 by 2. So instead of numerator we can write a into derivative of denominator plus b divided by x square plus 4x plus 5 dx. Separate divide. So this I is equal to, this MCQ number is what? This is 34. So I is equal to 1 by 2, 2x plus 4 divided by x square plus 4x plus 5 minus 2 divided by 1 upon quadratic equation. So
So jumping the steps, that is the shortcut here. डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव है log of denominator. इट इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करो. ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस 4 करो माइनस 4 करो प्लस 4 माइनस 4 मीन्स 1. 5 माइनस 4 प्लस 5 इज 1. सो दिस इज एज इट इज माइनस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दिस इज एज इट इज माइनस 2 tan inverse of x plus 2 by 1 plus c. So 1 by 2. अच्छा आंसर दिया है. सो ए की वैल्यू 1 by 2 और बी की वैल्यू -2. ए की वैल्यू 1 by 2, बी की वैल्यू -2. 1 by 2 and -2. आंसर इज व्हाट? डी. सो दिस इज द ऑप्शन 34. ओके 34 का ऑप्शन क्या है? डी. सो ये जो आईसीजे एग्जाम्पल्स है, देर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जाम्पल. इसको सिर्फ स्पीड से सॉल्व करो, ये भी फास्ट सॉल्व करो, स्टेप जंप करो और फुल कॉन्फिडेंस से उसका आंसर फाइंड करो. ओके सो 34 ओवर. नाउ 35 नेक्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू नंबर 35. 35 एक एमसीक्यू क्या है देखो. I is equal to integration x cube minus 4x square plus 6x plus 5 divided by x square minus 2x plus 3. So this is actual rational function, but a degree of numerator is greater than the degree of denominator. So that time no option, हम उसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करना ही पॉसिबल है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. x cube minus 4x square plus 6x plus 5. This method is applicable if and only if the degree of numerator is greater than the degree of denominator. Okay. So x cube होना x से multiply करो, x cube minus 2x square plus 3x. Always change the sign. Minus 2x square plus 3x plus 5. सो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. -2x स्क्वायर minus 4x minus 6. So change the sign. माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, ये माइनस बन जाएगा. माइनस एक्स प्लस 11, माइनस एक्स प्लस 11. सो दिस इज क्वोशंट. सो इसका इंटीग्रेशन है क्वोशंट प्लस remainder upon divisor. So what is here quotient of this example? X minus 2. What is here remainder? Minus x plus 11. What is here divisor? X square minus 2x plus 3 dx. So इसको अब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, ये तो फिक्स है. और दिस इज अ लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके एग्जैक्ट बैक एग्जांपल 34 एग्जांपल से सेम ऐसा ही था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. ट्राई टू सॉल्व दिस, बट माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाय 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाय 2. बी ऑप्शन भी है और सी ऑप्शन में भी है, तो हमें इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना ही पड़ेगा. सो सॉल्व दिस एमसीक्यू नंबर 34. इसके आगे आप सॉल्व करो. सो इसका ऑप्शन सी है, मेरे तरफ सी ऑप्शन है. ट्राई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ये अभी हुआ है लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, फॉर टुडेज पर्टिकुलर लेक्चर 15 एमसीक्यूज इज सफिशिएंट बिकॉज बहुत बड़े बड़े लंबे सोल्यूशन है. सो टुडे इज सफिशिएंट. We'll see next MCQ on the next full lecture. Okay, so stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So today I will stop here. Thank you very much.